Okay. So, hello students. Today I am going to now start one of the very important topic, that is dimensional analysis. Okay. So, dimensional analysis is fully based on the formula what you have observed in class 9, 10th as well in physics, also in mathematics. So, in dimensional formula, just we will discuss the different formula, its a unit and then dimension. So before starting the topic, just I would like to introduce you that what do you mean by dimension. Clear? So dimension, that means power. So just I am writing dimensional analysis. Dimensional analysis. Dimensional analysis. So dimensional analysis, that means just we have studied already in the previous video that the fundamental physical quantities. So what about fundamental physical quantities? So we have just seen the basic fundamental physical quantities: mass, length and time. These three are the fundamental or basic fundamental physical quantities. Clear? So most of the derived formula are obtained by using these three basic fundamental physical quantities. So the power. So power of any physical quantity, that is the dimension. Just I am writing here. So this speed is equal to distance by time. Distance by time. So just speed is equal to distance by time. That means what? Distance is measured in meter. In meter, that means it is length, so L, and time is second, that is T. That means we can also write here V is equal to LT to the power minus 1. Here power carrying L, that is length. Length, that means distance. So it is the power of length here. So power of length here is 1. This is the dimension. What is the power of time here? Power of time is minus 1. This is the dimension. Clear? So one more thing just I would like to say, that MLT, about M for mass, L for length, and T for time. So these three physical quantities are the basic or fundamental physical quantities. We will use only these three terms, and after that we will derive the different types of formula. ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि MLT के टर्म्स में कोई भी फिजिकल फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, बट यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, that is LT to the power minus 1. LT to the power minus 1, that means what? L का पावर 1 है, T का पावर minus 1 है. लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बात कहें कि इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, M to the power 0, L to the power 1 and T to the power minus 1. Can we write this thing? Yes, tell yes or no? Yes. This is absolutely right here. This is why, because anything containing power 0, that is equal to 1. So this gives 1. That means M to the power 0 gives 1. So this is the right formula. We can either write this thing or this thing. जस्ट वी हैव रिटन m टू द पावर 0. ऐसा हमने क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा ताकि हम लोग कोई भी फिजिकल फॉर्मूला को जब एक्सप्रेस करेंगे तो यही तीनों टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, m, l एंड t. क्लियर है?
जहां पे जो टर्म मिसिंग होगा, गायब होगा, उसका पावर हम लोग 0 लेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें कि मास, m एक्सटेंड फॉर मास, इसका पावर क्या है, 0 है, दिस इज डायमेंशन। l का पावर क्या है, 1 है, दिस इज डायमेंशन। l t का पावर कितना है, दैट इज -1, दिस इज डायमेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्लियर है। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ स्पीड को अगर हम लोग एक बात करें कि डायमेंशन इक्वेशन, एक बात यहां पे लिखते हैं, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन। सो डायमेंशन इक्वेशन इज नथिंग बट द टू parts, LHS part and RHS part, are kept in a big bracket separately, that is known as dimension equation। क्लियर है कि डायमेंशन इक्वेशन में जो हम लोग फॉर्मूला हम लोग को मिला है, उस फॉर्मूला को LHS पार्ट में भी बिग ब्रैकेट में रखना है, RHS पार्ट में भी बिग ब्रैकेट में रखना है, और ये दोनों पार्ट को जब हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बिग ब्रैकेट, then this shows the dimension equation like that। just I am writing here कि यहाँ पे स्पीड को मैंने क्या लिखा था, v, इसको मैंने बिग ब्रैकेट में लिख दिया, एंड देन m0 l1 and t to the power -1। so this is known as dimension equation, this is known as dimension equation। सो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग डायमेंशन इक्वेशन निकालेंगे, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, और एक चीज है कि डायमेंशन से उसका ऐसा यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखना है कैसे, ऐसा यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। यहां पे अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए स्पीड का ऐसा यूनिट m टू द पावर 0, मतलब ये मास का टर्म यहाँ पे नहीं है, l टू द पावर 1 मतलब क्या है, l एक्सटेंड्स फॉर डिस्टेंस, लेंथ, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है क्या, यस। t एक्सटेंड्स फॉर पावर -1, दैट मींस t फॉर टाइम, टाइम का पावर यहाँ पे कितना है, तो टाइम का पावर -1 है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो ms टू द पावर -1। सो दिस इज द ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड। So with the help of dimension equation or dimension formula, we will find the SI unit of the respective physical quantities। क्लियर है, तो इस चीज को जस्ट यू नोट डाउन। क्लियर, आगे हम लोग देखते हैं, डायमेंशन इक्वेशन बनाते हैं, डायमेंशन यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। सो नोट डाउन, पॉजिंग द वीडियो एंड देन नोट इट। So okay, so we have written or heading dimensional formula and then its SI unit। So first formula is, that is velocity, velocity। So what is the formula of velocity, yes, anyone? So the formula of velocity, this is the basic from class 9th na, yes। So velocity is displacement, displacement by time, displacement by time। So distance and displacement and distance और length, ठीक है, all are same, its SI unit is meter। तो यहां पे वेलोसिटी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं v से, क्लियर है। So this is v is equal to displacement, that means length, so displacement length, that means L, and t for time, so this can also be written as L, what happened, yes, L t to the power -1 and m0। This is the dimension of velocity written, this is the dimension of velocity।
if I am writing the SI unit of velocity from dimension formula, just I am writing here SI unit is equal to length meter and per second or meter per second. This is the SI unit. Clear है? Next is momentum. Yes, momentum. So momentum is equal to what formula of momentum? That is mass into velocity. Clear? So this is momentum, mass into velocity. So momentum is represented by letter P. So mass is m, and velocity that we have obtained earlier, velocity lt to the power minus 1, क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग इसको और कैसे अरेंज कर सकते हैं, m l t to the power minus 1. So this is the dimension formula. ml t to the power minus 1 is the dimension formula of momentum, and its SI unit, just I am writing here SI unit. तो SI यूनिट लिखना बहुत आसान है, अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से ही लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं. मास का SI यूनिट क्या होता है, दैट इज केजी. और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. सो केजी मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. क्लियर? नेक्स्ट इज area is equal to area of any figure, length into breadth, area. So area is represented by A. So A is equal to L, length, and breadth also L. This is why, because SI unit of length and breadth are same, because this is distance na, so length into length, that is equal to L square, but we have to insert here M and T. So M should be M0, L2, T0. Clear hai? So in terms of I am writing MLT, M0, T2, T0. Clear? And the SI unit here, SI unit of area is only L is looking na, L, that means meter square. Clear hai? M to the power 0 and L to the power 0, that is equal to 1. Don't confuse. हम यहाँ पे m to the power 0 और t to the power 0 को नहीं भी लिख सकते थे, बट क्या है कि जब हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग को MLT, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज को यूज करते हुए जो क्वांटिटी है MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम, उन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का मैंने लिखा. नेक्स्ट है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय V. सो V इज इक्वल टू L इंटू L. So L into L, that is L cube, but M and T is not here, but M to the power 0, L to the power 3, T to the power 0. Clear? So this is the dimension formula. Now SI unit of volume
So SI unit of volume is only L is looking na, L cube. That means SI unit of volume is meter cube. But meter cube. Next is our density. Density. So density is equal to mass into volume. Density is equal to mass into volume. So mass, what is the symbol of mass? M na? Okay, so density is rho. So rho is equal to mass M into volume is L cube. अभी हम लोग वॉल्यूम का निकाले ना, वॉल्यूम का क्या आया? मीटर क्यूब, दैट मीन्स L cube. So L cube, but time term is not here. So this will be M L to the power 3 T to the power 0. This is density. So this is the dimensional formula of density. Rho is equal to M L to the power 3 T to the power 0. And the SI unit of density, just SI unit of density, that is M, mass for kg, and length meter cube, kg meter cube, kg meter. Okay, no, sorry, mass by volume na, it is mass by volume, mass into volume, it is mass by volume, don't confuse. So this will be mass by volume. So this is M by L cube, M by L cube, So this will be M L minus 3 T to the power 0, and its SI unit will be kg per meter cube. This is its SI unit. क्लियर है? सो नोट करें इसको. नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करना है. करिए नोट. ओके. So next is our acceleration. Number 6, that is acceleration. So acceleration is equal to change in velocity. होता है change in velocity. So this will be equal to change in velocity by time. Change in velocity, that means final velocity minus initial velocity, and from this formula we have obtained the first equation of motion, v is equal to u plus at, right now. So change in velocity is nothing but velocity. ये भी तो एक velocity है ना. Change in velocity भी एक velocity ही है. So acceleration is represented by a letter small a. So a is change in velocity. That means velocity का हमने डायमेंशन फॉर्मूला क्या देखा था? L t to the power -1 देखा था ना. L t to the power -1 by टाइम का क्या होता है? t होता है. अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे. ये t को फिर से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? L t to the power -1 है, ये भी पावर जाएगा -1, तो दिस विल बी -2. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a इज इक्वल टू m का पावर 0 L t to the power -2. क्लियर है? m L t to the power -2, m L t to the power -2. एंड द SI यूनिट फेमस था, ये टर्म फेमस था.
क्लास 9th में, हाँ फेमस था ना। ओके, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, देख लो यहां से, मास तो टर्म नहीं है, लेंथ है, दैट इज मीटर एंड टाइम पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्स। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू फ्रॉम द सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मा, 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 वही मा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स, and force is represented by F, so F will be equal to mass, that is m, and a acceleration, अभी हम लोग लिखे ना acceleration का, lt to the power -2, so this is force m lt to the power -2, famous डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का याद रखना है, एम एल टी टू द पावर -2, भूलना नहीं है, भूले तो फॉर्मूला में जाएंगे ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग डायमेंशन भूल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला रिकॉल कर लेंगे, फॉर्मूला से डायमेंशन निकालेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने लिखा एम एल टी टू द पावर -2। अगर बात करें ऐसा यूनिट का तो क्या हो जाएगा, सो ऐसा यूनिट विल बी केजी मास, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज वेरी फेमस यूनिट ऑल्सो नोन एज न्यूटन। हाँ, महाराज धीराज न्यूटन ने इस फॉर्मूला को डिजाइन किया था, ऑब्जर्व किया था, F इज इक्वल टू एम ए। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना मेहनत किया तो मेरे को क्या मिला, तो लोग बोले कि ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पे आप ही का नाम लिया जाएगा, तो बोले कि अच्छी बात है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दूसरा नाम है न्यूटन, जो हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन, यही है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्लियर, तो प्रेशर का हमने P से रिप्रेजेंट किया, सो P इज इक्वल टू, हाँ यहां देखें, फोर्स का ऐसा यूनिट अभी मैं बताया क्या चीज, m l t टू द पावर -2 बाई, एरिया का ऐसा यूनिट क्या लिखा था, एरिया का यूनिट लिखा था l इंटू बी, दैट इज मीटर स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर। तो ध्यान देने योग्य बातें, इस चीज को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाए तो पावर क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ पे +1, सो +1 -2 that is -1, so this will be m l -1 t -2, l -1 t -2, एंड ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो मास, दैट इज केजी, लेंथ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर लॉर्ड महाराज पास्कल। तो वो गुस्सा गए और गुस्सा करके बोलते हैं कि हमने ढूंढा प्रेशर तो मुझे क्या मिला, तो फिर न्यूटन गुस्सा गए, बोले कि तो फिर मुझे क्या मिला, फोर्स है, फोर्स तो हम दे रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, चलिए आप फोर्स में अपना यूनिट न्यूटन रखिए, तो प्रेशर में कम से कम मेरे को अपना यूनिट
पास्कल तो रखने दीजिए, तो इसका दूसरा नाम हो गया पास्कल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 9, इम्पल्स। So what is impulse? So impulse is the product of force and time. Impulse is the product of force into time. So impulse is represented by I. So I is equal to force is dimension formula of force, mlt minus 2, mlt minus 2 this is into time is t. So यहाँ पे देख रहे हैं t minus 2 और into है ना t to the power 1, that is minus 2 plus 1. So this will be equal to ml t to the power minus 1. होगा डेफिनेटली होगा. So this is ml t to the power minus 1, right? So its SI unit is SI unit. So मास का क्या होता है, kg होता है, मीटर होता है और पर सेकेंड होता है क्या, kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. इंपल्स के बाद अगला फॉर्मूला हमारे पास, अगला फॉर्मूला है टॉर्क. नेक्स्ट फॉर्मूला है टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाँ, ये हम लोग चैप्टर में देखेंगे. टॉर्क चैप्टर में देखेंगे, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे टॉर्क का, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क. अब यहां पे देख रहे हैं कि हम लोग टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा अजीबोगरीब सिंबल है टाउ. एंड फोर्स का हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था एम एल टी माइनस 2, ऐसा लिखा था क्या, एम एल टी माइनस 2. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस ही है तो एल दे सकते हैं. तो अब यहां पे देखें क्या हो जाएगा. सो टाउ इज इक्वल टू एम एल पावर 1, दिस इज एल स्क्वायर टी माइनस 2. क्लियर है. तो यहां से हमने टॉर्क लिखा. अब यहां पे एसआई यूनिट लिखेंगे, तो एसआई यूनिट होगा क्या, मास, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So moment of inertia is is equal to होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई. सो एम आई इज इक्वल टू मास का एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या हो गया एल, एंड टी टू द पावर 0. टाइम नहीं है, टी टू द पावर 0. और इसका ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो ऐसा यूनिट इसका होता है केजी मीटर. क्या होता है, केजी मीटर. सो पॉज द वीडियो एंड अपने कॉपी पे इसको छाप लें, छापे. ओके,
So next is work. Next is work. वर्क किए क्या? वर्क 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 और वर्क डन सेम थिंग. So it is work done, force into displacement. Force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट किए हैं. सो W विल बी इक्वल टू, फोर्स का क्या होता है? MLT टू द पावर -2. MLT टू द पावर -2. And displacement, that is distance also. So this is L. So this will be W is equal to ML स्क्वायर हो जाएगा क्या? L स्क्वायर T टू द पावर -2 होगा क्या? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो ऐसा यूनिट हो जाएगा बच्चों kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारा टर्म एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं. L फॉर एंगुलर मोमेंटम, मास फॉर m, वेलोसिटी LT टू द पावर -1 and distance for length. So this will be equal to L for momentum, angular momentum, m L square T to the power -1, m L square T to the power -1 होगा क्या? m L square T to the power -1. और बात कर लेते हैं इसका ऐसा यूनिट का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है क्या? होता है. नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट हम लोग लेते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर होता है ना. हाफ mv स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. तो यहां से हाफ इज अ कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज ke. सो ke इज इक्वल टू, हाफ को बाहर रखते हैं, मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है L T टू द पावर -1. हो गया. तो यहां से ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड and this is also known as जूल. एंड नेक्स्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी. सो डोंट कंफ्यूज, जितने भी एनर्जी है सबका ऐसा यूनिट जूल होगा तो सबका डायमेंशन सेम होगा. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh. याद है पोटेंशियल एनर्जी P निकाले थे एक्सप्रेशन. सो P इज mgh और m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h फॉर हाइट. सो दिस विल आल्सो बी mlt-1. आप करके देख सकते हैं. और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो ऐसा यूनिट इक्वल टू हो जाएगा J, जूल या केजी मीटर पर सेकेंड. क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलता है चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस. वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलता है चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस. Change in velocity by distance gives velocity gradient and this will be, velocity gradient को हम लोग Vg भी बोलते हैं.
So this will be change in velocity, that means meter per second, that means LT to the power -1, और बाई डिस्टेंस है ना तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा क्या. सो दिस विल बी L -1 एंड A +1. तो क्या हो गया, ये हो गया -1 + 1 हो गया स्वाहा, खत्म. T टू द पावर -1, T टू द पावर -1. ठीक है, तो आ गया ऐसा यूनिट सेकेंड टू द पावर -1, सेकेंड टू द पावर -1. दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, एंड नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां पे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. यहां पे लिख दूं फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो यहां से देखिए फोर्स का mLT -2 बाय एरिया का क्या होता है L², वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है T-1. अब इस चीज को आप सोल्व करेंगे तो पाएंगे कि L का पावर हो गया -1, ये +2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा तो -1, ये हो जाएगा +1, दैट इज -T. सो दिस इज वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. अगर SI यूनिट की बात करें तो पर केजी, माइनस नहीं होगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड. क्लियर है, नोट कर ले जल्दी से. आखिरी कुछ बातें हैं. ओके, नेक्स्ट इज strain. Next is strain. So what is strain? So strain is the ratio of change in length by original length. चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. यहां पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में लेंथ है. ठीक है, तो अगर दोनों में लेंथ है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी फ्रॉम हियर. जस्ट यू कैन से कि यहाँ पे लेंथ और लेंथ क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना. तो स्ट्रेन को हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ बाय लेंथ, दैट इज कैंसल. तो इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ठीक है, सो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा M0 L0 T0. ठीक है, और यूनिट क्या, यूनिट लेस हो गया, 1 आ गया ना. स्ट्रेन. नेक्स्ट है स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, पढ़ाई करना है ना. ओके, स्ट्रेस. सो स्ट्रेस है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. नॉर्मल फोर्स बाय एरिया. अब नॉर्मल फोर्स दैट मीन्स फोर्स mLT -2 बाय एरिया इज L². तो ये हो जाएगा स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को S से रिप्रेजेंट किए हैं. सो दिस इज L2. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-1 T-2. सो दिस इज SI यूनिट की बात कर लेते हैं. तो SI यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्या. और एक और देखते हैं हम लोग, यंग्स मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है 11th में, उसमें देखेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखे थे हम लोग कि स्ट्रेन का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो स्ट्रेस का जो होता है वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, मतलब ML-1 T-1, क्योंकि तो यूनिटलेस है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वही इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg पर मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पर सेकेंड यहाँ पे टी होगा, पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं लास्ट में, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टाइम इनवर्स 1 बाई टाइम। सो फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करते हैं। सो f इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो अगर यहाँ पे बात करें m0 L0 t⁻⁻1, मतलब ऐसा यूनिट की बात करें तो हो जाता है सेकेंड इनवर्स। क्लियर? सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इट्स ऐसा यूनिट। सो अब तक जितने भी हम लोग फॉर्मूलाज यहाँ पे देखे, ऐसा यूनिट देखे, डायमेंशन यूनिट देखे, जस्ट यू नोट डाउन इन योर नोट कॉपी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डायमेंशन यूनिट कैसे डेराइव करते हैं और किसी फॉर्मूलाज को कैसे डेराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो बी कंटिन्यू, वॉच द वीडियो, मेक योर नोट्स प्रॉपरली, पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।